Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Suniti, you are audible. Shall we start, ma'am? With the permission of principal, ma'am, we can start. Okay, good afternoon, everyone. Welcome to today's webinar on career opportunities in health and insurance. I extend a very warm welcome to our distinguished resource person, Mr. Pankaj Durga and Mr. Vinay Jain. I welcome our respected principal, ma'am, Dr. Kiran Angra, who continuously motivates and supports us. Our institute achieved a great height of excellence under her guidance. She has set and worked on new dimensions in every field and still going on. I warmly welcome you, ma'am. I welcome our dear alumni and thanks for taking out your precious time for this webinar. Once again, I welcome all the participants on the behalf of Entrepreneur Development Cell. Now, I would like to introduce our respected resource person, Mr. Pankaj Durga. I think sir has joined. Pankaj sir has joined. No, madam. Sir? No, madam. He is just joining. He's on another call. Within 5 minutes, he will join. Madam, he is just joining. Within 1 minute, he will join. Sir, can we start first with Yes, you? of course, madam. Yes. Okay. Pankaj sir join. Thank you, madam. Thank you for giving us opportunity to join this prestigious institution. I'm very thankful, Dr. Angra, for this fabulous fabulous initiation, and I'm very grateful to you, ma'am, for organizing this very important opportunity for all of us. And I welcome all the alumni and student of MDSD Girls College in Balas for this, on the behalf of Star Health, for this wonderful organization. And I welcome Mr. Pankaj Durga, who is Assistant Vice President for the Chandigarh zone, which comprises Himachal, Haryana, and some part of Punjab and Chandigarh itself. So he is one of the senior resource in the organization, and he is responsible for organizing all the channels, and all the channels reports to him: banca assurance, agency development, operations, and claims, and hospital relation management, group medical, and so on. So we have also a web sale channels in the Chandigarh zone. So, sir, thanks for joining this initiation. And Mr. Pankaj, he will simply guide us that what are the health insurance opportunities in the recent scenario. So, Pankaj, sir, over to you.
Thank you, Vinay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. We warmly welcome you in our college, in this platform. Thank you, ma'am, and thank you for giving us this opportunity. In fact, since insurance and especially health insurance is my domain since past 15, 17 years. So I love to conduct this type of session so as to enlighten the youngsters and to make them aware why this is important and why everyone should have health insurance. So as far as my experience is concerned, actually, I started in my career in 1999 and 2000. And I worked with FMCG for 4 years. And after that, I joined ICICI Lombard. There I was working for 5 years. And currently, I'm here with Star Health for approximately 13 years. So this has been my journey. And when I basically was into a fast moving consumer goods industry, insurance was really scary for me. और मैं ये देखता हूँ कि लोगों का जो है वो जो भी इंश्योरेंस से जुड़े नहीं है आज की डेट में, उनको ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या उनको लगता है कि ये मतलब सेल करना भी मुश्किल है और लोगों को कन्विंस करना मुश्किल है इसके लिए. सो इंश्योरेंस अदरवाइज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. वो मैं अपने सेशन में आपको समझाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट, कैसे काम करता है इंश्योरेंस. सो बिफोर starting the session, I would like to intimate you all, and I would request you all to be interactive so that I may know that what are you are understanding and what all you know about insurance. तो जो है वो मेरा रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट से कि प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहें और बीच बीच में आप आंसर करते रहें अनम्यूट करके. सो गाइज, हमारे इंडिया में जो है वो 2 तरह का इंश्योरेंस वाइडली जो है वो सेल होता है. मुझे बताएंगे कौन कौन से तरीके के इंश्योरेंस होते हैं? 2 मेजर इंश्योरेंस कैटेगरीज. Anyone? Okay, so see, Health insurance, life insurance. Life insurance and Health insurance. okay. See, basically 2 types of categories of insurance are there: life insurance and general insurance. Health insurance comes under general insurance only. तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इज एक्चुअली is a risk covers the risk that covers the life of person in case he is not there in this world. तो उनके डिपेंडेंट्स को जो है वो अमाउंट मिल जाती है if the person is insured. तो लाइफ इंश्योरेंस का मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्यों जरूरी है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें बेसिक से, स्क्रैच से, कि इंश्योरेंस है क्या और कैसे काम करता है. सो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि एक फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं. एंड हस्बैंड इज वर्किंग, वाइफ इज होम मेकर, एंड बच्चे जो है वो अभी छोटे हैं और दे आर स्टडीइंग इन द स्कूल. अब इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो लिविंग मेंबर जो अर्निंग मेंबर जो है वो चला गया. तो उस सिनेरियो में व्हाट विल हैपन टू द फैमिली? हाउ विल दे सर्वाइव? हाउ विल दे मीट देयर डेली नीड्स? तो कैसे वो आगे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उनका रोज का घर का खर्चा निकलेगा? सो हेयर एंड लाइफ इंश्योरेंस हेल्प्स. अगर
जो है डिजीज ने जो मेंबर चला गया, उन्होंने अगर अपना टर्म प्लान या और कोई लाइफ इंश्योरेंस अगर कराया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड जितना कराया है एज इट इज फैमिली को मिल जाता है। एंड जो है उनका घर का खर्चा और जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कैन बी टेकन केयर ऑफ विद दैट अमाउंट। So in this way, the life insurance helps. Now coming up to general insurance, how general insurance helps? General insurance में अब everything is covered under general insurance apart from life insurance. मतलब life का जो है वो human life का cover है, इसके अलावा everything is covered in the general insurance. किसी भी चीज का आप ऑफिस का इंश्योरेंस लेंगे, स्कूल का इंश्योरेंस लेंगे, अपना मोटर इंश्योरेंस मतलब व्हीकल का इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, ट्रांसपोर्ट अगर कोई गुड्स जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह का, उसका इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस। सो एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो बाकी का कैटेगरी जो है बहुत वाइड है, तो उसको मैं ज्यादा डिस्क्राइब ना करके आई विल कम स्ट्रेट अवे टू हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो एवरी काइंड ऑफ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट एंड शुड बी टेकन। अब जैसे मोटर इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस तो हमारा गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी किया हुआ है। वो मैंडेटरी इसलिए किया हुआ है कि हमारी वजह से अगर किसी को चोट लग जाती है ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट और हम पे करने की सिचुएशन में नहीं है उस पर्सन को, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। दिस इज द रीजन व्हाई मोटर इंश्योरेंस इज मैंडेटरी इन इंडिया, राइट? नाउ कमिंग अप टू हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और वो कैसे काम करती है? अब अगेन आई एम प्लेसिंग एन एग्जांपल विद यू। इन केस देयर इज अ स्मॉल फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, एंड किसी कारण से हस्बैंड का जो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, उस सिचुएशन में क्या होगा? अब एक तरफ से जो है वो जो अर्निंग मेंबर है वो पैनिक में है, पेन में है और वो हॉस्पिटलाइज है, और इधर जो है वो वाइफ एक तरफ से उसको टेंशन है कि हस्बैंड की टेंशन है और घर में बच्चों को भी संभालना है, और दूसरी टेंशन क्या होगी? क्या होगी दूसरी टेंशन? एनीवन? एनीवन कैन स्पीक? दूसरी टेंशन होगी कि फाइनेंस कैसे अरेंज होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे हॉस्पिटल को देने के लिए, राइट? ये होता है। तो जो है अब इन केस द पर्सन इज हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस, तो हम लोग कैशलेस कार्ड देते हैं एंड दैट हैज टू बी शोन टू द हॉस्पिटल और वो कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। इन अदर केस अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो द वाइफ और एनी ऑफ द मेंबर शुड हैव टू अरेंज द मनी, वो चाहे नेबर्स से ले, चाहे वो फ्रेंड सर्कल से ले, चाहे वो अपने रिलेटिव से ले, जैसे भी करके द अमाउंट हैज टू बी पेड टू द हॉस्पिटल। उसके बिना ट्रीटमेंट नहीं करेगा हॉस्पिटल। और जब बंदा ठीक होके आएगा देन ही हैज टू शेल आउट हिज सेविंग्स। सेविंग्स नहीं है तो गोल्ड बेचेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा, कुछ भी करके उसको जो है अपना जो भी लिया हुआ है पैसा वो उसको चुकाना पड़ेगा। So this is the reason why health insurance is important, and everyone in this world, in fact, in this world should have health insurance, ताकि जो है आप किसी भी तरीके से की मेडिकल जो है इमरजेंसी को डील करने के लिए आप तैयार हो, करेक्ट? सो अब कई लोगों को ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है। लोग एक्चुअली इंडिया में आई एम टेलिंग यू ओनली 10% ऑफ द पीपल आर कवर्ड अंडर रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस। ये आप आर्टिकल आप देख सकते हैं गूगल पे, और आपको आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रायर टू कोविड से पहले वाली जब सिचुएशन थी तो 8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। आफ्टर कोविड 10% ऑफ द पीपल आर कवर्ड अंडर रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस।
सो ऑलमोस्ट 90% जनता के पास इंश्योरेंस नहीं है। मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और कॉर्पोरेट पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें वो अलग है, अगर वो कवर्ड है तो ठीक है उसके थ्रू। बट देखा जाए तो हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है, सो वी शुड हैव आवर ओन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एटलीस्ट। सो नाउ मैं ये आपको बता रहा था कि 10% पॉपुलेशन कवर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस में, और हमारे को जो है वो इट इज बेसिक नेसेसरी। लोग ये सोचते हैं कि ये जो कॉस्ट है हेल्थ इंश्योरेंस में हमें जो देनी है, अगर क्लेम नहीं आया तो पैसे खराब है, राइट? ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ये रहती है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट ऑप्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं कैलकुलेशन आपको दूं एक, तो इस कैलकुलेशन से आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दिस इज नॉट द वेस्ट ऑफ मनी। हम जो है वो ऑन एन एवरेज एक पॉलिसी का 15,000 चार्ज करते हैं, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में इतना ही तकरीबन प्रीमियम है। सो 15,000 एवरेज प्रीमियम चार्ज करते हैं हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का। 4 बंदों का प्रीमियम 15,000 पर एनम। अब अगर हम 10 साल तक वो प्रीमियम पे करते हैं तो हमने कितना पे किया टोटल 10 इयर्स में? एनीवन? कितना पे किया? 1.5 लाख। नाउ माय क्वेश्चन इज Sir, कि actually we have hard muted our students so that they can take questions later on. Otherwise, there will be much disturbance. That's why they are not able to answer you. ओके ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सो हमने जो है टोटल एक फैमिली ने पे किया 1.5 लाख पे किया 10 इयर्स में। अब 10 साल में 4 बंदों का एक बार भी क्लेम ना आए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? मींस एक बार भी हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? आप ये चीजें एनालाइज करो। ये एक्चुअली जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। तो मैं आपको इसलिए ये कैलकुलेशन दे रहा हूँ ताकि आपको चीज समझ में आए, बिकॉज हम actually being in this industry since past 13 years, we see so many cases coming up for hospitalization. Every hospitalization is full. कोई हॉस्पिटल किसी भी टाइम पे खाली नहीं मिलता हमारा, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि लॉट मेनी पीपल आर गेटिंग हॉस्पिटलाइज ड्यू टू वन रीजन और द अदर। और इन आवर जोन फ्रॉम हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, हमारा ये जोन में तकरीबन 30,000 क्लेम्स पर मंथ के आते हैं। 30,000 क्लेम्स पर मंथ। सो दिस इज द काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और ये वही है जिनकी इंश्योरेंस हुई हुई है। बाकी लोग कितने होंगे जिनकी 90% है लोग जिनकी इंश्योरेंस हुई नहीं हुई। तो कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं आप ये देख लो। सो नाउ कमिंग बैक टू दैट कैलकुलेशन कि अगर 10 साल में 1.5 लाख पे हुआ और एक बार भी क्लेम आ गया, तो एक हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट 1.5 और मोर, सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन ऑन एन एवरेज। कोई सर्जरी आ गई तो 3 से 4 लाख का खर्चा है। अब 10 साल में अगर मान लो लोग कहते हैं कि चलो क्लेम नहीं आया तो हमारे पैसे खराब, बट दिस इज अ लाइफ लॉन्ग पॉलिसी। ये एक बार बंदा करा लेता है तो जो है वो जब तक इस धरती पे है तब तक ये पॉलिसी चलती रहती है। अब हम 20 इयर्स का सिनेरियो ले लेते हैं। 20 इयर्स में हमने चार्ज किया 3 लाख, 10 साल में 1.5 लाख था, एंड 3 इयर्स में जो है वो 3 लाख हुआ। चलो थोड़ा पॉलिसी का प्रीमियम अगर बढ़ भी गया तो 3.5 लाख तक का जो है टोटल एक्सपेंस आता है इन 20 इयर्स। अब मुझे बताओ इन 20 इयर्स फॉर 4 पीपल अब तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा? यस। सो आज के डेट में जो हॉस्पिटलाइजेशन मैं बोल रहा हूँ 1.5 लाख का है, इन नेक्स्ट 10 इयर्स दैट विल बी मोर देन डबल, और उसके आगे 10 इयर्स में इट विल बी डबल देन दैट।
सो आज की डेट में जो हॉस्पिटलाइजेशन 1.5 लाख का है वो 10 साल बाद 3 लाख का होगा और उसके 10 साल बाद 6 लाख का होगा। आज की डेट में अगर हम सर्जरी कॉस्ट 3 to 4 lakhs लेते हैं ऑन एन एवरेज, तो वो 10 साल बाद 6 से 8 लाख हो जाएगा एंड उसके 10 साल बाद इट विल बी 12 to 18 lakhs। सो जो है वो एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 10% एवरी ईयर। तो जो है ये हमारे पास क्या टूल है अपनी सेफ्टी के लिए? क्या हमने अपनी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है? एंड इफ नॉट, देन वी शुड डेफिनेटली हैव इट फॉर आवर सेफ्टी, फॉर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ against any medical emergencies, right? So this is why health insurance आज की डेट में is the most important। हम लोग आज की डेट में बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है। रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, राइट? So this is from my side. I have explained you in a very brief manner why health insurance is important. इसके अलावा जो है I would like to have your queries and then I would like Vinay to take over the session for whatever options we are having. We are having full-time options, part-time options, वो सारे हैं आपके लिए। तो जो भी चाहता है ऑन बोर्ड आना, तो हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही हम लोग चाहेंगे कि वो काम शुरू करें। So guys, up to you now. Any queries, please let me know. Chat box में एक बार चेक कर लेता हूँ। Thank you so much, sir. जी मैम, एक्चुअली क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, मैंने बड़ा कम शब्दों में जो बेस्ट मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। Thank you so much, sir. Students, if you can write your queries in the chat box. आई थिंक क्वेरी कोई है नहीं अभी। No, sir. तो विनय, कैन यू प्लीज टेक द सेशन फर्दर? Okay, sir. Thank you, sir. Now I would like to introduce our another resource person, Mr. Vinay Jain. Sir is senior manager at Star Health and has worked with many insurance companies like PNB, MetLife, Bajaj, Tata, and American International Groups. He was also associated with the Tribune English newspaper and has more than 25 years of experience in this field. I welcome you, sir, and over to you, sir, for this session. थैंक यू सर। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने पंकज सर को सारा डिटेल में उन्होंने आपको बड़ा सिंपल बताया कि हम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस क्यों रिक्वायर्ड है, और आजकल कोविड के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारी नेसेसिटी बन गई है। हमारा फाइनेंशियल क्रंच को बचाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। और अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्मल वे में अभी सर ने आपको बताया कि सिर्फ चंडीगढ़ जोन में, दैट इज हिमाचल, चंडीगढ़ और पटियाला और इस पंजाब का कुछ पार्ट और हरियाणा, यहाँ पे तकरीबन 30,000 क्लेम हमारे आ रहे हैं। और कोविड के टाइम में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो 30,000 वो क्लेम्स हैं जो कि एक महीने में आ रहे हैं, और वो भी हमारे पास जो कि इंश्योर्ड लोग हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन कितना बढ़ गया है वो एक अलग चीज है। तो अभी सर ने एक और बात बताई आपको कि अभी जो हमारे पास पार्ट टाइम और फुल टाइम ऑप्शन है वो क्या क्या हैं और कैसे हम उसमें काम कर सकते हैं। सो मैं उस पर आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि हमारे पास क्या पार्ट टाइम ऑप्शन है और क्या फुल टाइम ऑप्शन है, और कैसे हम ये प्रोग्राम हम MDSD कॉलेज के साथ जुड़े हैं। सो बेसिकली हमारा एक करियर अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हम अपने यंगस्टर्स को हेल्थ इंश्योरेंस की अपॉर्चुनिटीज के बारे में और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा अवेयर कर रहे हैं। सो इसी कड़ी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप कैसे इनकम कर सकते हैं, और अगर आपको कंपनी में एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय भी बनना हो तो उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो मैं एक आपको छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। सो
मैडम मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके, सो अभी सर ने आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताई थी कि 10% के हिसाब से काफी चीजें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो इसमें अगर आप इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे, हाउ मेनी % ऑफ पीपल कैन अफोर्ड 5 lakhs, हाउ मच सम एश्योर्ड यू हैव टेकन फॉर योरसेल्फ, आर यू कवर्ड बाय सेल्फ और द कंपनी। सो अभी आप तो लोग स्टूडेंट्स हैं या एलमनाई हैं, कहीं जॉब छोटा कर रहा होगा, बड़ा कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। तो लेकिन आप लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस आपके पेरेंट्स के साथ होगा तो वो अलग चीज है, लेकिन एज ए एम्प्लॉय आपके पास नहीं होगा। तो अगर मैं उसी बात करूं कि जैसा अभी सर ने अभी बोला था, पंकज सर ने, कि हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, तो अगर आज नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है तो 4 लाख रुपए है, 5 साल के बाद ये कॉस्ट 7,70,000 होगी। और अगर मैं इसको बात करूं कि अगर 10 साल के बाद ये 14,82,000 होगी और 20 साल के बाद ये 54,97,000 होगी। अगर मैं हार्ट की एंजियोप्लास्टी की बात कर रहा हूँ, स्टेंट की, तो 3.5 लाख की कॉस्ट है, 5 साल के बाद ये तकरीबन 6,73,000 की होगी, और 10 साल के बाद 12,97,000 की होगी, और 20 साल के बाद 48 लाख की होगी। और लीवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो 30 लाख की आज कॉस्ट है, जो 5 साल के बाद बढ़ के तकरीबन 58 लाख और 20 साल के बाद 4 करोड़ के करीब बढ़ जाएगी। तो ये कॉस्ट का आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस हिसाब से हमारे इन्फ्लेशन हमारे हेल्थ ट्रीटमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है सेकंड बिगेस्ट स्पेंड इन इंडिया है, और 2019 में 5.5 लाख करोड़ रुपया हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड किया गया, जो तकरीबन 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं दूसरी चीज की, कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो सिनेरियो है, 85% लोगों के पास 5 लाख रुपए कैश नहीं होता अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। 14% लोगों के पास फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है। केवल 1% लोग ही हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। मैडम मेरा स्क्रीन बदल रहा है, तो मैं आपको दिख रहा है ना? No, sir. ओके, सो स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल से। आपको पहली स्लाइड ही दिख रही है ना? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। वो कुछ, या मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज दूं, आप शो कर पाएंगे, या मैं ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से कर दो सर, आप सेंड, मैं प्रेजेंट कर दूंगी इधर से। ओके ओके। सो इसमें अगर मैं बात करूं आगे, कि हमारे पास आगे जो दूसरी चीज है, कि हम लोगों का जो इंश्योरेंस है वो है कि 10% लोग ही इंश्योरेबल पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर, और 71% ही जो डेथ्स हैं वो डिफरेंट बीमारियों से हो रही है, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, रेनल फेलियर। और 60% इंडियन के पास जो है, वो जब ऐसी कोई फाइनेंशियल क्रंच आता है तो कहीं ना कहीं वो कोई असेट बेच के या पैसा उधार लेके काम करते हैं। और हमारा तकरीबन मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो 5 से 8 लाख के बीच में कवर होती है। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और अगर आप इसको टेक्निकल में देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस से एक रिक्वायरमेंट कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो 2018-19 से तकरीबन 26% 19-20 के अंदर इसकी ग्रोथ हुई है। और इंश्योरेंस एजेंसी जिनके पास थी, उन्होंने बहुत इसमें इंश्योरेंस के अंदर सेल आउट करके काफी अच्छी इनकम को लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है डिमांड वो कोविड के टाइम में काफी बढ़ी है। सो यहां तक आपको कोई टेक्निकली में कोई चीज पूछना हो किसी को भी, देन आई वेलकम ऑल द क्वेरीज प्लीज। कोई भी इसमें स्टूडेंट इस चीज को पूछ सकता है, कोई भी चीज, कोई सवाल है जो आपके पास। वी विल वेट फॉर अ 30 सेकेंड। कोई भी सवाल है? Sir, Any there is no question? question. We can continue, sir. Okay.
सो अगर हम बात करें स्टार हेल्थ की, मैडम मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं तो आपको विजिबल हो रहा है? Yes, sir. Now it is visible. ओके Slides are moving. ओके। सो स्टार हेल्थ की बात करें तो स्टार हेल्थ के पास, हाँ, हमारे पास 750 ब्रांचेस हैं और 700 हमारे पास वन मैन ऑफिस हैं जो छोटे शहरों में है। तकरीबन 11,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, 14,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं और 2,000 प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और 5 लाख से ज्यादा हमारे पास एजेंसी फोर्स है। सो अभी रिसेंटली स्टार हेल्थ का आईपीओ भी आया है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में लिस्ट हुआ है 10 दिसंबर को। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जो कि बिग बुल हैं, वो इसके एक हमारे मेजर इन्वेस्टर हैं और शेयर होल्डर हैं। स्टार हेल्थ की बात करें 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था। वी हैव अ 34% प्लस मार्केट शेयर। अगर हम स्टार हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे एजेंसीज के लिए बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन है। हमारे पास कई और चीजें भी हैं, जैसे कि हमारे पास रिटेल में, अभी सर ने भी बताया था कि रिटेल में जो है 31.25% का मार्केट हेल्थ शेयर है और नंबर 1 हम इंडस्ट्री पोजीशन है। 85% रिटेल ओरिएंटेड एजेंसी ड्रिवन बिजनेस है हम लोगों का। मैडम स्लाइड मूव हो रही है ना? सर अबाउट अस वाली स्लाइड अभी है, ये मूव नहीं हो रही सर। उधर साइड से स्क्रॉल करो नीचे, वहां से होगी सर। नहीं, मैं स्लाइड शो पे जाके कर रहा हूँ तो पूरी स्क्रीन दिखेगी नहीं तो चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी आपको दिख रहा है नया स्लाइड मार्केट पोजीशन? यस सर। ओके, तो मैं स्लाइड शो पे नहीं जाता तो उसमें दिक्कत आएगी। सो इसके लिए आपके पास एक स्टार के साथ एक अपॉर्चुनिटीज है, जुड़ने के साथ आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और हम सबको मालूम है कि हमें एक्स्ट्रा इनकम की कहीं ना कहीं जरूरत है। और अगर हम बात करें तो क्योंकि जरूरत है, ये मेजर जो आप स्लाइड पे देख भी रहे होंगे, मेजर जो हमारी लाइफ के हिस्से हैं उसके अंदर, चाहे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना चाहें, चाहे आपका कोई सपना है, चाहे वेकेशन है, चाहे उसके लिए आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कार लेना चाह रहे हैं या अच्छी कुछ और अपने इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं लाइफस्टाइल में, डेट अगर है तो रीपे करना चाह रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे हैं और आप अपने टर्म्स पे खुद काम करना चाह रहे हैं, अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इनकम ही कमाएंगे, आप उस फैमिली के अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। उस फैमिली के अंदर जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कल को उनको कोई भी छोटी सी भी हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, जो कि बड़े कॉमन है आजकल के टाइम में और ये बढ़ रही है, तो सबसे पहले वो आप ही को कॉल करेंगे। तो उनको लगेगा कि यस, आप ही उसके एक ट्रू मतलब सच्चे दोस्त हैं, ट्रू फ्रेंड हैं, जिसने ये उसको पॉलिसी दी है। तो अगर कहीं भी अगर जो लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उन्होंने कहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लेम ना हो, तो जैसे ही वो क्लेम आएगा तो सबसे पहले वो आप ही को शुक्रिया अदा करेंगे, आपको ही थैंक्स कहेंगे, आपको ही हर बात में ऑब्लाइज करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने उनकी बहुत मदद की शुरू में। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस एक आजकल पुल प्रोडक्ट है, पुश प्रोडक्ट नहीं रहा, लोग खुद डिमांड करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। सो हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक्स्ट्रा इनकम आप यूज कैसे कर सकते हैं, तो वो एक सिनेरियो है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको इनकम भी है, रिकॉग्निशन भी है। वो कैसे रिकॉग्निशन है वो भी हम बात करेंगे। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, पर्सनल ग्रोथ भी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप अच्छी तरह कर सकते हैं। और आप कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हैं या कहीं और कोई भी और एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां भी इसके साथ आप इसको जुड़ सकते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं बताता हूं आपको। रेफरिंग पीपल्स हैं, आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं रेफर कर सकते हैं, हमारे साथ जोड़ सकते हैं। और अब उसके अंदर क्या क्या रिकॉग्निशन है इनकम के साथ साथ, मैं वो आपको बताता हूँ। दैट इज अ क्लब मेंबरशिप। मैडम स्लाइड दिख रही है ना आपको? सर ओके, सो क्लब मेंबरशिप है हमारे साथ। बीएम क्लब मेंबर है, जेडएम क्लब मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट क्लब मेंबर है, ईडी क्लब मेंबर है, सीएमडी क्लब मेंबर है, सीएमडी एलाइड क्लब मेंबर्स हैं। सो दीज आर द क्लब मेंबर्स। इसमें आपको एक रिकॉग्निशन भी है कंपनी की तरफ से, साथ में इनकम भी है। और वो क्या क्या डिटेल्स हैं, जब आप जुड़ेंगे तो हम आपको डिटेल में उसमें बताएंगे कि आप कैसे उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें कुछ आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी। इसके अलावा आपके लिए फॉरेन टूर्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे फॉरेन टूर्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं।
आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो इनकम है, दैट इज अ रिन्यूअल इनकम आल्सो, उसके अंदर जब आपने एक पॉलिसी कर दी तो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसी आपकी एक ही बार रहेगी, क्योंकि कस्टमर आपके साथ एक बार जुड़ गया तो आपको नेक्स्ट ईयर आपके साथ ही जुड़ा रहेगा। और अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इस साल बिजनेस किया, तो से एग्जांपल आपको 20,000 उसका रेम्यूनरेशन मिल गया 20%। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका जो बिजनेस है, वो जो 1 लाख रुपए इस साल आपने किया था 2022-23 में, जो आप 23-24 में पॉलिसी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी 1 साल की होती है, तो उसके भी आपको 20% जो 2022-23 का बिजनेस है उसकी कमीशन आपको नेक्स्ट ईयर आपको आएगी। प्लस नेक्स्ट ईयर का जो 23-24 का बिजनेस होगा उसका अलग आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिन्यूअल बिजनेस आल्सो। तो आप 3-4 साल के अंदर ही बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच जाते हैं। और जो लोग इंश्योरेंस में अच्छा करते हैं, उनको कभी भी दूसरी कोई भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप लोगों के साथ जुड़ के आप एक रिन्यूअल इनकम भी कमाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा बिजनेस जो आप करना चाहेंगे या कर रहे होंगे या कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, तो वो जब तक आप कर रहे हो जिसको, तभी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको रिन्यूअल बिजनेस मिलता है। अगर इस साल बिजनेस किया तो उसका फायदा आपको अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल होगा। और अभी जैसे आपने पंकज सर को सुना होगा, तो क्लेम्स अगर आ गए, तो क्लेम्स के अंदर अगर उसकी पेमेंट भी हो गई, तो वो कस्टमर आपको 10 कस्टमर आगे रेफर करके देगा। सो इट्स माउथ एडवर्टाइजमेंट आल्सो। तो अगर मुझे क्लेम मिलता है, जो कि सबको मिलता ही है, तो यहाँ पे अगर मुझे क्लेम मिल रहा है तो मैं 10 लोगों को बोलूंगा कि आपसे जुड़े और आप उनकी हेल्प करें। तो ये एक ऐसा बिजनेस है। तो यहां तक आपको कोई भी सवाल है या कोई पूछना है तो मैं बताएं, फिर उसमें एक और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा विनय, जी सर। दैट क्या होता है कि एक इंडियन जो है वो मेंटेलिटी ये भी है, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी है, पता नहीं क्लेम देगी या नहीं देगी। क्योंकि एक ना एक्चुअली क्या होता है कि नेगेटिव ज्यादा जल्दी ट्रैवल करता है, राइट। सो ये कई लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ऐसा ना हो कि हम पैसा पे करते रहे और कंपनी जब क्लेम देने के टाइम पे कंपनी क्लेम ना दे। तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा दैट ईच एंड एवरी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इज अबाइड बाय IRDA, राइट। हमारा जो है, जो कंपनी के रेगुलेटर हैं, दैट इज IRDA। और जो गवर्निंग अथॉरिटी जो है वो एक बड़े मैटर करती है कि इन केस कुछ भी अगर दिक्कत आए तो दे आल्सो इंटरफेयर। बट अदर अपार्ट फ्रॉम IRDA, द कस्टमर कैन गो टू ओम्बड्समैन और कंज्यूमर कोर्ट। सो नो कंपनी वांट्स कि जो है कस्टमर जो है ओम्बड्समैन में या कंज्यूमर कोर्ट में जाए और कंपनी का नाम खराब हो। एंड जिसका भी जेन्युइन क्लेम है, जो भी जेन्युइन क्लेम है वो उसको मिलता ही मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रीजंस आ जाते हैं जहां पे लगता है कि ये क्लेम हो सकता है फेक हो, या इसमें जो है वो टेम्परिंग हुई है क्लेम में, वहां पे जाके दिक्कत आ सकती है। और वहां भी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में अगर ठीक आता है तो क्लेम पास हो जाता है। हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, when at the time of pitching the policy to the customer, कि उनको जो कंपनी के रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम प्रॉपर तरीके से उनको डिस्क्लोज करें। क्योंकि होता क्या है कि बिजनेस लेने के चक्कर में एम्प्लॉयज या एजेंट्स वो क्या करते हैं, कस्टमर को बोलेंगे हाँ सब कुछ कवर्ड है फ्रॉम डे वन, तो कस्टमर जो है वो मिसगाइड हो जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है एट द टाइम ऑफ क्लेम्स। सो हमें ये देखना है कि हम कई चीजें हैं जिसमें जो कई डिजीज हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं जहां पे जो हम 2 साल के बाद ही कवर करते हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट, अल्सर्स। तो जो है ये स्टोन्स, रीनियल स्टोन, गॉल स्टोन, ये हम 2 साल बाद कवर करते हैं। और इनको 2 साल बाद कवर करने का लॉजिक ये है कि अगर किसी को हो जाए एक बार, तो वो जो है ये 1 साल तक भी कैरी ऑन कर सकते हैं। तो
हम लोग ये नहीं चाहते किसी को आज कोई चीज डायग्नोज हुई और उसने क्लेम लिया और पॉलिसी ले ली, सो दैट इज नॉट फेयर। तो इसका जो है ना, इसलिए 2 साल का एक्सक्लूजन लगाया हुआ है। 2 साल के बाद हम लोग इसको कवर करना शुरू करते हैं। पॉलिसी की कंटिन्यू 2 साल होगी, हो जाएंगे, तो 3rd ईयर से दिस विल बी इंक्लूडेड इन द पॉलिसी। एंड वन इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो कोई पहले से है, अगर जैसे बीपी शुगर ये कुछ पहले से है, अगर उसकी वजह से कुछ होता है तो वो 4 साल के बाद कवर होगा। सो दैट हम लोग जो है उन कस्टमर्स को ना लें जो ऑलरेडी जिनको कुछ है, और वो इंश्योरेंस का फायदा ना उठाएं। उनको अगर कुछ है तो वो पॉलिसी ले लेंगे और फिर ट्रीटमेंट करा लेंगे इमीडिएटली। सो दैट शुड नॉट बी देयर। तो इसको अवॉइड करने के लिए these 2 checks has been done. This is followed by all the company and this is the as per regulatory norms. तो एक्सक्लूजन जो होते हैं, अगर आपने एक्सक्लूजन प्रॉपर तरीके से कस्टमर को समझाया है तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग पॉलिसी है। आज नहीं तो कल तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा, आज नहीं तो कल क्लेम आएगा ही आएगा, एंड जो है उस टाइम पे हमें उसको पे करना ही करना है। तो अगर ये पहले से ही प्रॉपर तरीके से पॉलिसी एक्सप्लेन करके और एक्सक्लूजन बता के अगर पिच किया जाएगा पॉलिसी, तो दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ लॉन्ग कभी दिक्कत नहीं आएगी, राइट? सॉरी विनय, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। सो अभी आप स्लाइड्स पे आप देख रहे होंगे कुछ फोटोग्राफ्स हैं फीमेल्स की, और इसमें से बहुत से फीमेल्स को आप रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं। ये कुछ टॉप एंटरप्रेन्योर हैं इंडिया की: वंदना लूथरा, किरण मजूमदार शॉ, प्रिया पॉल, रितु कुमार, सुचि मुखर्जी, इंदिरा नुई, अदिति गुप्ता, फाल्गुनी नैयर, वानी कोला, राधिका घई। तो इनमें से बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा, और इनकी कंपनीज का नाम VLCC, बायकॉन, ठीक है, फैशन डिजाइनर, लाइमरोड, अमेजोन, सो मैनसपेडिया, नायका। तो नायका का तो भी पब्लिक इशू भी आया था। सो ये वो लोग हैं जो फीमेल एंटरप्रेन्योर है। तो अभी जो लीडरशिप में अगर देखें तो 3.7% ऑफ CEOs एंड MDs NSE लिस्टेड कंपनी पे वुमेन है। 8.9% जो है वुमेन्स, वो टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पे हैं, जो टॉप फर्म्स हैं उसमें। 13.8% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है लिस्टेड कंपनीज की, और 542 जो सीट्स हैं लोकसभा में, तो उसमें 78 वुमेन्स हैं। तो ये वुमेन लीडरशिप है जो अब आ रही है, जो अभी तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आप सब देख रहे हैं, तो वहां पे वुमेन्स कहाँ कहाँ पोजीशंस हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से भी बहुत सी फीमेल्स बहुत अच्छी पोजीशंस पे हम आने वाले टाइम पे देखेंगे, और इस कॉलेज में भी बहुत अच्छे फीमेल्स लीडरशिप प्रोड्यूस किया है। सो अभी हम बात करते हैं कि आप स्टार हेल्थ के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो एक जुड़ने का तरीका ये है कि आप एंटरप्रेन्योर बन के इंडिपेंडेंटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले इनकम आपको सोर्स बताया, वो भी है। तो ट्रेवल अब्रॉड है, ठीक है, इनकम फॉर फ्यूचर भी रहेगी, और सब चीजें हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप मिनिमम +2 भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेजुएट एम्प्लॉय के लिए, और 18+ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। हम आपका एक एप्टीट्यूड लेंगे और एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, और जो उसके बाद अगर हमारे साथ एज ए एम्प्लॉय आप फुल टाइम जुड़ना चाहेंगे, अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, तो हम एज ए आपको एम्प्लॉय भी ले लेंगे। एंड पंकज सर इज विद अस। तो सर के पास ही फाइनल अथॉरिटी होती है जो रिकॉग्निशंस करना है और फाइनल ज्वाइनिंग करना। सो वहां पे सब HR के साथ हम आपको मिलके वहां पे कैंडिडेट को जो हमारे साथ इंटरेस्टेड होंगे काम करने में, उनको प्लेस भी कर सकते हैं एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय अगेंस्ट ए पर्टिकुलर सैलरी। तो वो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी वो अलग अलग डिपार्टमेंट की है, तो मैं उसका ब्रीफ आपको आगे दूंगा। लेकिन आपको बेसिक जो हमारा है दैट इज अ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद एक आपका टेस्ट होगा, आपका हम इंटरनली टेस्ट भी लेंगे। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हम आपको जूम पे भी कंडक्ट कर सकते हैं, और अगर कॉलेज अथॉरिटी परमिट करेगी तो हम कॉलेज में आके भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट होगा, जैसा कॉलेज अथॉरिटी के साथ हमारा कम्युनिकेशन रहेगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 आवर्स ट्रेनिंग। जूम पे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे आप कर रहे हैं। कोविड के टाइम में कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो उसके ऊपर भी, अगर कॉलेज खुल जाते हैं, ओपन ऑफ कैंपस भी करना चाहेंगे तो हम उस पर भी कर लेंगे, ऑनलाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस हैं। वो टेस्ट हम कोशिश करते हैं कि अंबाला में ही हो जाए, क्योंकि फीमेल्स आप लोग शायद चंडीगढ़ ना जा पाए या कॉलेज के टाइमिंग्स ऐसे हों या आपकी स्टडी हैम्पर ना हो, तो हम कोशिश करेंगे कि अंबाला में हो जाए। अंबाला में तो हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके कैंपस में भी हो जाए। वी विल ट्राई, क्योंकि वो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग उसके अंदर वो, क्योंकि वो एनएससी आईटी कंपनी लेती है जो कि आईआरडी की तरफ से ऑथराइज है, रेगुलेटर जो है। वहां पे हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉलेज कैंपस में ही ऑर्गेनाइज हो जाए। दैट इज पर उसमें मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन अंबाला में हो जाएगा, दैट इज गारंटेड। तो वो चीज है। अब इसके अंदर हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? हम आपसे एक सिंगल पैसा चार्ज नहीं करेंगे। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम। इसमें हम आपको 2 सर्टिफिकेट देंगे, एक आईआरडी की तरफ से होगा और एक स्टार हेल्थ एकेडमी की तरफ से होगा सर्टिफिकेट, जिसपे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एवीपी और इन सबके साइनिंग होंगे। और इन फ्यूचर अगर आप हमारे साथ एज ए एम्प्लॉय जुड़ते हैं तो हम उसमें आपको प्रेफरेंस भी करेंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, 10th का और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट +2 भी चलेगा, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक सेविंग अकाउंट कैंसल चेक डिटेल। और इसके साथ साथ ये सब चीजें हमारी रहेंगी। 25 आवर्स ट्रेनिंग है, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जाम की कोई फीस नहीं रहेगी, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद सारी इंश्योरेंस की डिटेल्स हम आपको ट्रेनिंग देंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंगल पैसा कहीं भी चार्ज नहीं होगा। और अगर एज ए एम्प्लॉय आप हमारे साथ आ रहे हैं तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते ही डिफरेंट चैनल्स में हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज हैं। पंकज सर भी उसको सारा हैंडल कर रहे हैं। जो अंबाला है वहां भी अपॉर्चुनिटी है, नारायणगढ़, शाहबाद, राजपुरा, यहाँ पे हमारे एज ए मैनेजर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। साथ ही हमारे पास वेबसेल्स है। वेबसेल्स के अंदर हमारा जीरकपुर में ऑफिस है, तो वहां पे हमारे डेस्क जॉब है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो ये रिसेंट, क्योंकि ऐसे तो बैंक इंश्योरेंस में भी हमारे पास अंबाला और उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे बैंक्स के अंदर एज ए एम्प्लॉय आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कंपनी के एम्प्लॉय होकर आप बैंक के कस्टमर के साथ डील करेंगे, दैट इज आल्सो देयर। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर और आपकी इंटरव्यू में कहाँ पे आप कर पाएंगे हम आपको ज्वाइनिंग, और कहाँ पे आप लोग फिट हो सकेंगे, और वो लोग कैंडिडेट इंटरेस्टेड भी हैं, तो वो भी डिपेंड करेगा। जिसमें इसमें स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो ज्वाइनिंग आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी हम आपसे एक सिंगल पैसा नहीं चार्ज करेंगे। दूसरा, इसके अंदर ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं है, एग्जामिनेशन को कोई फीस नहीं है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम। और उसके बाद एज ए एम्प्लॉय आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसमें भी हम आपसे कोई सिंगल पैसा नहीं लेते। आपका टैलेंट और आपका जो स्किल है उसके ऊपर ही आपकी सिलेक्शन डिपेंड करेगी। सो यहां तक आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, अगर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया है, उसको जॉब भी मिल गई है, बट वो स्टडी के साथ ही कैसे मेंटेन करेगा उसको? मैडम देखा, फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उसमें कॉन्टिन्यूस भी तो एलुमनाइज के लिए प्रोग्राम है, तो उसमें तो वो स्टडी उनकी कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेजुएटेड। अगर सर मान लो कहीं और पीजी कोर्सेज कर रहे हैं स्टूडेंट, नहीं, अगर पीजी फुल टाइम कर रहे हैं तो फिर तो वो एक ही चीज कर पाएंगे। अगर वो एज ए कॉरस्पॉन्डेंस स्टडीज कर सकते हैं, वो हमारा एचआर पॉलिसीज है, उसके अंदर हम जो एचआर पॉलिसी होगी उसमें चलेगा। एंड सर, जो भी परस्यू कर ही रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, सर पंकज सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम, एक्चुअली जो परस्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दे कैन अप्लाई फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एंड meanwhile, if the students like, then with their study they can be a part of organization as an advisor। ठीक है, जो एग्जाम होगा IRDA का, ये एग्जाम का सर्टिफिकेट इनको मिलता है, क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, तो उसके बाद दे कैन बी एन एडवाइजर। अब एडवाइजर के केस में कोई ऐसा टारगेट नहीं है और कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। एडवाइजर इज बेसिकली प्योरली ऑन कमीशन बेसिस, ठीक है, इंसेंटिव बेसिस पे है। तो आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम, द एडवाइजर विल बी अटैच्ड टू द कंपनी एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग्स।
और जो भी वो बिजनेस लेके आएंगे उस बिजनेस का एक सर्टन जो है वो पे आउट वो उनको मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है, ये मैं आप सबके लिए बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात ये है हेल्थ इंश्योरेंस में एवरी ईयर इक्वल पे आउट है। ठीक है, हर साल अगर एक पॉलिसी आज आपने इश्यू करवाई है, आज आपने एक पॉलिसी पिक की है, तो उसका रिटर्न आपको 30 इयर्स तक आता है मिनिमम। मतलब ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि हमारा ये रहता है ऑन एन एवरेज 30 इयर्स तक। क्योंकि एक पॉलिसी जो आती है अगर आपने ठीक से समझा के दी है, एक्सक्लूजन बता के दी है, तो वो पॉलिसी कभी ब्रेक नहीं होती। तो कोई बंदा 30 में कराता है पॉलिसी, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 साल में कराएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 इयर्स है। अगर हम एवरेजिंग कर लें इसका तो 30 इयर्स प्लस एक पॉलिसी चलती है। ठीक है, तो जो है इसलिए आप जो भी पॉलिसी लेके आते हैं उसका आपको पे आउट इस साल भी आएगा और अगले साल जब रिन्यू होगी फिर दोबारा आएगा। जब तक रिन्यू होती रहेगी उसका पे आउट आपको आता रहेगा। राइट मैम? सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है पूजा, एनी रिस्क इन इंश्योरेंस पॉलिसी? मैम समझ नहीं आया ये एक्चुअली ना कि क्या पूछना चाह रहे हैं ये। पूजा आप अपने क्वेश्चन को फिर से फ्रेम करके डालो। एनी रिस्क इन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स किस तरह का रिस्क? एक्चुअली अगर मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, सपोज हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, और अगर इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, किसी की वजह से भगवान ना करे कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो कंपनी ने पे करना है। सिर्फ एक पोर्शन होता है 5 to 10% जो कस्टमर ने पे करना होता है एट द टाइम ऑफ क्लेम। बाकी सारा पेमेंट कंपनी देती है। वो भी पे क्या करना होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कॉटन चार्जेस, ग्लव चार्जेस, जो कंज्यूमेबल होते हैं उसका पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन का और फूड का पे करना होता है अपना। बाकी सारा कंपनी पे करती है। ठीक है, तो मुझे और समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। मैंने जो बेस्ट रिप्लाई करना था किया है। अगर और कोई क्वेरी हो तो प्लीज दोबारा से चैट बॉक्स में डालिए। सर जैसे 25 आवर्स की ट्रेनिंग हो गई, क्या हम उसको विद इन वीक कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ हाँ मैडम, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसमें सर। कोई परेशानी नहीं है। अगर अब विद इन 1 वीक नहीं कर पाए तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ओके सर। और ये ट्रेनिंग के बाद आपको एक आईआईडी की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तरफ से भी, एक आईआईडी की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस हम भी आपको स्टार हेल्थ एकेडमी की तरफ से एक सर्टिफिकेट देंगे। सर और सर ने जैसे बताया कि एक अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है और कोई टारगेट नहीं है, तो वो उसके साथ रहेगा ही रहेगा। कोई हमारा टारगेट नहीं है, दैट्स ए बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस। और एज ए एम्प्लॉय जब अगर आप कभी भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो हम उसमें आपको प्रेफरेंस भी देंगे। और अभी अभी भी हमारे पास, मैंने आपको बताया कि रिसेंटली भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है तो वो अपना सीवी शेयर कर सकता है, चाहे मुझे डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। और अगर नहीं है तो वो इनडायरेक्टली भी आपके थ्रू भी हमें शेयर कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9965209999, व्हाट्सएप कर सकते थैंक यू हैं सर। लोकेशन। सो ये कोई अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमने आपको बताई एज ए पार्ट टाइम भी और एज ए फुल टाइम भी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो वो मैडम आपके पास ज्वाइन भी काफी लोगों ने करा हुआ है, काफी इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, तो आप हम जैसे बात भी कर लेंगे। अगर आपको विजिट करना होगा मैं आपके कैंपस में भी विजिट कर लूंगा। अगर ऑफलाइन दोबारा भी मिलना होगा या ऑनलाइन मिलना होगा हम कर सकते हैं। श्योर सर। एनी अदर क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स? कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताएं। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। पूजा शायद आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई है, आपको अपनी क्वेरी का आंसर मिल। ठीक है Sir, now I request to my dear colleague, Dr. Anuradha, for thanks. Thank you, Sunniti. Am I audible? Yeah, yes, यस ma'am. मैडम, ऑडिबल। Okay. Good afternoon, everyone present here. Honorable resource person, Mr. Vinay Jain and Mr. Pankaj Durga, our very elated principal, Dr. Kiran Angra, and all the participants.
It is an honor for me to get the opportunity to thank you all dignitaries on behalf of the Entrepreneur Development Cell of MDST Girls College. I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. My deep sense of appreciation for Dr. Vinay for telling us value of insurance and care for our health. I also extend my gratitude to our honorable resource person, Mr. Pankaj Durga, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, for inspiring and encouraging my students. A special thanks to Dr. Kiran Angra, Principal, MDST Girls College, for providing immense support to make the webinar successful. I extend my gratitude to Ms. Suniti, in charge Entrepreneur Development Cell, for her sincere efforts throughout the event. Last but not the least, I am thankful to our students and alumnus for working hard for the past few days to make this day successful. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you so much. Thank you, ma'am. I would also like to thank the management for giving us this opportunity, all the senior staff of the college. And this, I hope that students will must have learned something from this. And this is a lifelong learning session if they keep this session, if they keep these things in their mind. So this will really help for whole of the life. Yes, sir, of course, very true. And I hope our students have learned a lot from today's webinar. And the last slide, be your own boss, is really helpful for all of them. And thank you so much, sir. Now, students, we have shared a feedback form for you. आप उसको fill कर दीजिए, and your attendance will be marked through that feedback form. After 15 minutes, we'll close the meeting. Till then, you can fill the feedback form. Ma'am, please allow me to log out. Actually, I have another VC to with the head office. Sure, sir, you can I'll leave the take the meeting. field. Thank you for Thank your you. precious time. Thank you. Thanks, Principal ma'am. Thank you so much. Take care.